नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐतिहासिक गांव चौटाला में, या यूं कहूं राजनेताओं की नर्सरी चौटाला में, तो कुछ गलत ना होगा। चौटाला गांव से आपको बता दूं कि जन सरोकार बाइक रैली का एक आयोजन जो है वो जननायक जनता पार्टी के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दूं कि 8 दिसंबर का जो दिन रखा गया था, क्योंकि 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी की झज्जर में जन सरोकार रैली आयोजित होने जा रही है। तो उस रैली के पूर्व संध्या पर, या पूर्व कहें तो, एक जन सरोकार मोटरसाइकिल यात्रा जो है वो यहाँ से शुरू होनी है। चौटाला गांव से शुरू होगी और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से होती हुई ये यात्रा जो है वो झज्जर में इस यात्रा का समापन होगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि युवा जो है और युवा नेता जो है वो यहाँ पे इस जन सरोकार मोटरसाइकिल यात्रा को सफल बनाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगर बात करूं तो डबाली से चुनाव लड़ चुके सरबजीत सिंह मसीता, उनके साथ साथ चौटाला गांव से कुलदीप जाखड़ और रणदीप सिंह मर्दातू सहित अन्य नेता जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं सरबजीत सिंह मसीता से, क्योंकि ये जननायक जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो सर, अगर बात करना चाहें तो जन सरोकार रैली से पूर्व जो है ये जन सरोकार मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का, खास करके अगर बताएं? जाखड़ साहब, पहला तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ खुद हकीकत 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਊ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹਜੂਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਅੱਜ ਡਬਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਚੌਟਾਲਾ ਗਾਮ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਖੁਦ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਝੱਜਰ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇੰਸੋ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੌਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਲੂਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਔਰ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਜੰਡ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਗੰਗਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਊਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਿੱਜੂ ਵਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਹਲਕੇ ਵੰਨੀਓ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਨਾਬਾਦ ਸਵਾਗਤ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਧੋ ਸਗਾਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਭੱਟੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਿਵਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਹੈ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਇੰਸੋ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਥੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਈ ਡੇਢੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਚਾਹੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ भी की है, दुष्यंत जी ने हमेशा किसान की आवाज़ में उठाया। जाखड़ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद यहाँ आए। इस रैली के अंदर जो चौटाला के ऐतिहासिक गांव से शुरू हो रही है, यह बहुत ही ज़्यादा उमंग उल्लास नौजवानों के अंदर है और भाई सरबजीत मसीता जो जिला अध्यक्ष है हमारे, इनकी अगुवाई के अंदर रणदीप जी मर्दादू इनकी अगुवाई के अंदर और अनेक अपने जो युवा साथी है या बुजुर्ग साथी है
इसमें बहुत हौसला है। और चौटाला गांव एक ऐतिहासिक गांव है। हमारे गांव का नाम BBC जो लंदन हिंदी का प्रोग्राम आता है उसके अंदर भी हमारा गांव का नाम गूंजता है। और मैं स्वयं जो वहाँ पर इंडिया बोल पार्क कार्यक्रम आता है उसके अंदर इस गांव की, इस हल्के की आवाज़ उठाने का काम करता हूँ। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, अब रणदीप सिंह मरदादू हमारे साथ मौजूद हैं। युवा नेता हैं और काफ़ी प्रगतिशील नेताओं की श्रेणी में इनका नंबर जो है वो आता है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। रणदीप जी, अगर बात करें तो इस रैली को लेकर के युवाओं में किस तरह का उत्साह और क्या उम्मीद आप लगाए बैठे हैं कि इस रैली में कुछ नई घोषणाएं की जानी चाहिए? के हरियाणा का पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप दिग्विजय सिंह चौटाला जी के पैतृक गांव चौटाला में आए हो पूरे प्रोग्राम को कवर करने के लिए। इस जो जन सरोकार बाइक यात्रा है चौधरी दिग्विजय सिंह जी चौटाला की, झज्जर से वो शुरुआत करने जा रहे हैं। झज्जर से चलकर फिर भिवानी रुकेंगे और फिर कल भिवानी से चलकर झज्जर पहुंचेंगे। तो युवाओं में बहुत जोश है। पूरे इलाके के जोश बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी अरसे से अपने नेताओं का कि वो आएँ, हमारे बीच आएँ। कुछ कोरोना की वजह से और फिर कुछ किसान आंदोलन की वजह से जो नेता थे हमारे, वो हमारे बीच कम आ पाए। लेकिन जैसे ही हमारे नेताओं को मौका मिला उन्होंने वैसे ही घोषणा कर दी। और दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने साथ के साथ कहा कि मैं भाई अपने पैतृक गांव चौटाला से, मेरे इलाका से, डबली से मेरा खास लगाव है। मैं सभी युवा साथियों के साथ खुद मोटरसाइकिल चलाकर जन सरोकार दिवस मनाने के लिए झज्जर में पहुंचेंगे। ठीक है। घोषणाओं की अगर बात करें तो क्या उम्मीद आप लगाए बैठे हैं उप मुख्यमंत्री? देखिए, दिग्विजय जी और दुष्यंत चौटाला जी युवा हरियाणा के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आज हरियाणा का युवा दुष्यंत चौटाला जी की ओर बड़ी आस और उम्मीद से उनकी तरफ देख रहा है। घोषणाएं की बात नहीं, हमारे जो नेता हैं वो काम करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, घोषणाओं में विश्वास नहीं करते। जैसे कि आपने लगातार देखा है युवाओं को जो 75% उन्होंने आरक्षण का हरियाणा वासियों को एक तोहफा दिया है, उससे बड़ा सभी वर्ग पूरे हरियाणा वासी बड़े जोश से हैं, युवा वर्ग बड़ा उत्साह में है। और अनेक ऐसी योजनाएं हैं। देखिए आप, कितने जो माइनर हैं वो पक्के हो रहे हैं किसानों के लिए, कितने खाड़े हैं वो पक्के हो रहे हैं। इतनी ऐसी नीतियां हैं, खेल की नीतियां हैं, पंचायती राज के अधीन जो आने वाली नीतियां हैं, जो काम गाँवों के काम हैं। दुष्यंत चौटाला जी लगातार प्रयासरत हैं, चाहे पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात हो, युवाओं को आरक्षण देने की बात हो, वो हर मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। वो ना सिर्फ घोषणा करते हैं, वो काम करने में विश्वास रखते हैं। और हम सब की उम्मीद है आने वाले 2 वर्ष में ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो हमारे इलाके का वो रह जाएगा। वो बड़ी अच्छी तरह इस बड़ी भांति इस इलाके की जो समस्याएं हैं उससे जानूं और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ युवा साथी और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, इस जन सरोकार रैली को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उम्मीदें आप इस रैली से लगाए बैठे हैं? आज गांव चौटाला से भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी तमाम युवा साथियों के साथ, तमाम इनसो के साथियों, इनसो संगठन जो हमेशा हरियाणा की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे देश में जिस सामाजिक काम की बात की जाए, चाहे कोरोना काल में पूरे हरियाणा के शहरों को सैनिटाइज करने का काम किया भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी खुद पंचकुला में, और तमाम हरियाणा के राज्यों में शहरों को सैनिटाइज किया। सो इनसो संगठन जो है, छात्र संगठन, हमेशा, चाहे आपको याद होगा भाई साहब कि जो छात्रों की मांग थी, हरियाणा के छात्रों की मांग थी कि हरियाणा में जो है कॉलेजों में इलेक्शन हो, क्योंकि कोई इलेक्शन नहीं था, छात्रों की कोई मांग नहीं थी। लेकिन इनसो संगठन भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के, दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र वहाँ पे बैठे, धरना लगाया और 4 दिन भूख हड़ताल पे बैठ के हरियाणा के युवाओं को उनका हक दिलाया। आज हरियाणा में डेमोक्रेटिकली पूरे इलेक्शन होंगे, छात्र संगठन के इलेक्शन होंगे। और जैसे आज पूरा युवाओं में जोश है, युवाओं में जोश इसलिए है क्योंकि 75% का वादा जो जेजेपी ने किया था, जो भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने किया था, इनसो संगठन ने किया था, वो मात्र 2 साल के अंदर, गठबंधन सरकार के 2 साल के अंदर उन्होंने वो पूरा किया। और छात्राओं को बात की जाए तो वो भी पिछले हफ्ते पास हुआ था कि छात्राओं को मुफ्त, कॉलेज जो छात्र हैं उनको मुफ्त बसों में सफ़र की वो पास मिलेंगे, वो मुफ्त सफ़र करेंगे। वो भी एक वादा चुनावी जो जेजेपी का था वो पूरा हुआ। भाई साहब, इस रैली से क्या उम्मीद है आपको? हमें ये उम्मीद है जो हमारी पार्टी के वादे थे
जो जैसे 75% हो गया, वो हमारा बिल था वो पास हो गया। और जो बसों का हमने फ्री का जो भी हमने वादा किया था वो भी हमारा पूरा हो गया। महिलाओं का जो आरक्षण था पंचायतों में वो दे दिया, डिपो होल्डरों में दे दिया। और जो हमारे जो वादे रहे हुए हैं 5100 हैं। और जो युवाओं के साथ हमने करा हुआ है, जो भी हम प्राइवेट सेक्टर में हर हालत में हर युवाओं को घर घर से हम रोज़गार देंगे, तो वो भी हमें उम्मीद है भी जल्दी से जल्दी पूरी होगी। और जो बुढ़ापा पेंशन है 5100 की, वो भी हमें उम्मीद है हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो भी हमें पूरा करके दिखाएंगे। आखिर साहब क्या उम्मीदें हैं इस रैली से, इस जन सरोकार बाइक यात्रा से आपकी? जो हमारी 9 दिसंबर की जो रैली है, इसमें सबसे पहले तो युवाओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि उनका 75% का जो मुद्दा था वो जेजेपी ने करने का काम किया। तो इस रैली से लाखों युवा आज दुष्यंत जी के साथ जुड़ भी चुके हैं और जुड़ भी रहे हैं। टाइम में इनसो संगठन में के आने वाले टाइम में अच्छा स्टूडेंट के लिए अच्छे कामों के लिए और अच्छे वादे किए जाएंगे और अच्छे मजबूती से स्टूडेंट की बातों को उठाया जाएगा। और यूथ को राजनीति में आने के लिए उसकी प्रेरणा दी जाए, प्रेरित किया जाएगा। ठीक है भाई साहब, आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं इस रैली से? देखो, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि युवा साथी और भाई दिग्विजय जहाँ होता है वहाँ युवा तो होता ही होता है। और उम्मीद तो युवा जो 75% आरक्षण मिला युवाओं को मिला, लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए सुविधा थी, अब फ्री में किराए के लिए सुविधा दी गई है। बाकी अनेक घोषणाएं जो मतलब भाई दुष्यंत चौटाला ने पूरी की है शासनकाल के दौरान, और बची हुई कुछ घोषणाएं वो अभी थोड़े टाइम में पूरी और कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी वी आर सेटिस्फाइड। आपको उम्मीद कोई नहीं है, जो घोषणाएं पूरी की हैं उन्हीं पे ही आप? नहीं, उम्मीद के हिसाब से, और उम्मीद हमारी थी वो पूरी हो रही है। 75% की आपको बताया, बैकवर्ड क्लास के 8% लोगों के लिए, युवाओं को इलेक्शन लड़ाने की बात थी दुष्यंत चौटाला जी की, वो पूरी हुई। जो घोषणाएं हो रही है और भी हमारे इलाके के लिए, तो आजकल घग्गर की योजना थी वो पूरी हो रही है। बहुत खुशी की बात, इलाके के लोगों में बहुत ज़्यादा रोशनी है भी, हमारे जिम्मेदार साथी बहुत खुश हो रहे हैं भाई दुष्यंत चौटाला। चलिए शुक्रिया। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद इस रैली से आप लगाए बैठे हैं? उम्मीद दुष्यंत से है जी, पूरे हरियाणा को उम्मीद है। वो लगातार जो वादे किए थे वो एक एक करके सब पूरे हो रहे हैं। तकरीबन ज़्यादातर तो हो ही गए, जो रहते हैं वो 1-2 साल में सभी पूरे हो जाएंगे। इसीलिए हमारे लोग उनके साथ चल रहे हैं, काफिला बढ़ता चला आ रहा है दिन ब दिन, लोगों में जोश है। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या उम्मीद है कि क्या नया दे इस बार? देखो जी, लोगों में बहुत उत्साह है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के लोग हैं जो जेजेपी पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। और हमारे जो नेता है दुष्यंत जी चौटाला काम करने का इरादा रखते हैं, काम करते हैं। जो कह दिया, जो घोषणा पत्र में जो उन्होंने कहा था लगभग पूरा कर दिया, जो रह गए हैं वो भी पूरा करके दिखाएंगे। चलिए शुक्रिया। उम्मीदों की अगर बात करें तो इस रैली से कोई नई उम्मीदें यहाँ के लोगों ने नहीं बताई है कि कुछ नया दुष्यंत चौटाला इस बार करें, घोषणा करें, लेकिन जो पुरानी घोषणाएं थी उनको पूरा करने की उम्मीद जो है वो यहाँ के लोगों ने ज़्यादातर बताई है। और इस बाइक रैली की अगर बात करूँ तो ये जो बाइक मोटरसाइकिल यात्रा है, इस यात्रा को लेकर के युवा साथियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। ये यात्रा जो है वो चौटाला गांव से शुरू हो करके चौधरी देवीलाल की जन्मस्थली चौटाला गांव से शुरू हो करके और ये जो है भिवानी रुकेगी आज, यानी कि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से होती हुई, अलग अलग विधानसभाओं से होती हुई भिवानी पहुंचेगी। और भिवानी से कल सुबह चल करके सीधा झज्जर जो जहां पे जन सरोकार रैली का आयोजन होना है वहां पे पहुंचेगी। तो ऐसे में हजारों की संख्या में युवा जो है वो बाइक रैली के माध्यम से वहां पे पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। खैर, यहाँ चौटाला गाँव से कितनी भारी भरकम भीड़ के साथ दिग्विजय सिंह चौटाला रवाना होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।